Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 4th वीक ऑफ दिसंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडिया के कुकिंग कोल इंपोर्ट के बारे में, राइट। अभी रिसेंटली पूछा जा रहा है एज ऑफ दिसंबर इंडिया का कुकिंग कोल इंपोर्ट कितना था ड्यूरिंग द अप्रैल नवंबर पीरियड ऑफ फिस्कल ईयर 24। तो कितना था ये है आपका 38.14 मिलियन टन का यहाँ पर हमें कुकिंग कोल इंपोर्ट देखने को मिला। सबसे ज़्यादा कहाँ से देखने को मिला? ऑस्ट्रेलिया से हमें सबसे ज़्यादा कुकिंग कोल हमने इंपोर्ट करा। ये डोमिनेंट सप्लायर है फॉर इंडिया, राइट। इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रा बताओ बिस्लेरी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। फुटबॉल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कार्तिक आर्यन, ठीक है। फिर पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक किनको बनाया गया? वो है CS राजन, ठीक है। नेक्स्ट विच बैंक और ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइन अ लोन of $100 million with the government of India for India Tripura Urban and Tourism Development Project. Which of the following organizations signed this loan? It was by Asian Development Bank, right? They signed a loan with government of India for the Tripura state's urban and tourism development project to increase tourism in Tripura. This was done, correct? Take a note of this, right? Next, and what was the loan for amount? It was $100 million. Next, if I ask you, tell me who has been recently appointed as the BSE chairman? Pramod Agrawal, right? SEBI has approved Pramod Agrawal as the new chairman of BSE. Next, which organization or ministry has recently collaborated with Asian Development Bank to launch an initiative that facilitates climate action in India's agriculture, natural resource and rural development sector? Which is that ministry or organization? It is NABARD, correct? NABARD, and along with Asian Development Bank, they have launched an initiative to facilitate these ANR sector, that is agriculture, natural resource and rural development sector. Here these both organization they will be collaborating and ये help करेंगी फार्मिंग सेक्टर को ग्रो करने के लिए। फार्मिंग सेक्टर को यहाँ पे ग्रो करने के लिए ये दोनों काम करेंगे, एंड इससे रिलेटेड जो भी आसपास के सेक्टर हैं उनको भी ग्रो करेंगे। एंड बेसिकली यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंसिंग में भी इनका काम किया जाएगा, ताकि जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करें, जो हम उपज करें और पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा ना काटा जाए, उससे रिलेटेड जो हमारे इन्वायरमेंट को बेनिफिट देगी, जो सॉइल को बेनिफिट देगी, ऐसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फार्मिंग हम कर सकें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड
फीमेल एथलीट्स की ये लिस्ट रहेगी, इसमें से पूछा जा रहा है ABC कौन सा ठीक रहेगा, तो तीनों ऑप्शन ABC यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। पॉलिश टेनिस प्लेयर ईगा स्वातिक, इन्होंने टॉप किया इस लिस्ट को विद एन अर्निंग ऑफ $23.9 मिलियन, बिल्कुल सही। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु 16th पोजीशन पे थी इन दिस लिस्ट विद $7.1 मिलियन की अर्निंग, बिल्कुल सही। फिर आ जाता है एट द एज ऑफ 43 वीनस विलियम्स, ये ओल्डेस्ट प्लेयर रही इन लिस्ट में, एंड 19 ईयर ओल्ड कोको गॉफ, ये यंगेस्ट प्लेयर रही इन दिस लिस्ट। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन ठीक रहेंगे। इसके अलावा ज़रा बताओ, अभी अगर आपसे पूछा जाए कौन सी कंट्री एक कार्बन इंपोर्ट टैक्स लगाने वाली है 2027 से, वो रहेगी यूके। जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाएंगे उस पर कार्बन इंपोर्ट टैक्स लगेगा। नेक्स्ट, व्हेन वाज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया, तो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया? 24 दिसंबर को। एंड जो कंज्यूमर्स के राइट्स होते हैं, राइट, जो वो अपने बेसिकली राइट्स की, उनके बारे को अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस, डेंजरस प्रोडक्ट्स के खिलाफ वो रिपोर्ट कर सकते हैं, राइट। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व करते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। पहली बार 1986 में ऑब्जर्व किया गया था ये। एंड इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं, ज़रा बताओ ओपेक ऑर्गेनाइजेशन से जिस कंट्री ने अभी एग्जिट किया है वो कौन सी कंट्री रहेगी? रिपब्लिक ऑफ अंगोला, इन्होंने एग्जिट कर दिया है ओपेक से। नेक्स्ट, गुड गवर्नेंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 25th of December टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो कौन है वो? अटल बिहारी वाजपेयी, राइट। तो गुड गवर्नेंस डे हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस इंडिया ऑन 25th of December टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि 10वें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी मेमोरी में, इनके बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं गुड गवर्नेंस डे। इस बार कौन सा गुड गवर्नेंस डे था? याद रखेंगे 10th प्राइम मिनिस्टर थे, 10th फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो इस बार याद रखेंगे ऐसे ही कि ये 10वां गुड गवर्नेंस डे था। एंड इनकी 99th बर्थ एनिवर्सरी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ रिसेंटली मेड द फर्स्ट एवर पेमेंट इन रुपीज़ फॉर क्रूड ऑयल परचेज फ्रॉम डैश कंट्री। तो इंडिया ने अभी रुपीज़ में यहाँ पे पेमेंट करी है क्रूड ऑयल की। किस कंट्री को पेमेंट की और किस कंट्री से बाय किया क्रूड ऑयल? UAE से यहाँ पे इंडिया ने बाय किया और जो पेमेंट करी रुपीज़ में की फॉर क्रूड ऑयल। नेक्स्ट, नेम द इंडिया बेस्ड स्पेस ऑब्जर्वेटरी, जो अभी रिसेंटली जिसने डिटेक्ट किया ब्राइट सब सेकेंड एक्सरे बर्स्ट फ्रॉम दिस मैग्नेटार। मैग्नेटार क्या होता है? मैग्नेटार एक वो न्यूट्रॉन स्टार होता है जिसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो बहुत ही हाई होती है। तो इंडिया की कौन सी स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी जिन्होंने डिटेक्ट किया इन ब्राइट सब सेकेंड एक्सरे बर्स्ट को फ्रॉम दिस मैग्नेटार? तो उसका नाम रहेगा एस्ट्रोसैट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया मैडटेक मित्रा को। ये एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है ताकि इंप्रूव किया जा सके एंड एम्पावर किया जा सके हमारे मेडटेक सेक्टर को। एंड जो हम हेविली डिपेंडेंट रहते हैं इंपोर्ट्स पर फॉर मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल टेक्नोलॉजी, उसको हम छोड़कर हम अपने इंडिया में ही मेक इन इंडिया के अंडर मेडटेक से रिलेटेड मेडिकल टेक्नोलॉजी, इन सबको यहाँ पे इंडिया में ही डेवलप करें। इसके लिए पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट एजेंसीज हैव इनिशिएटेड दिस मेडटेक मित्रा। तो नीति आयोग बिल्कुल सही, ICMR बिल्कुल सही, एंड सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे मेडटेक मित्रा इनिशिएटिव को आगे ले जाने की बात की। नेक्स्ट, अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई कॉइन स्विच के द्वारा। इन्होंने रिपोर्ट में बताया कि, या फिर इंडिया की इनकी जो रिपोर्ट आई थी ना वो थी इंडियाज क्रिप्टो पोर्टफोलियो। इसमें बताया गया कि वो कौन सी सिटी है जिसने टॉप किया है इन इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो अडॉप्शन, या जिसने टॉप किया इन इंडियाज क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स। तो वो रहेगी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा हमें क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट देखने को मिली 8.8% की। इसके बाद आ जाती है फिर पुणे में सबसे ज़्यादा देखने को मिली 3.8, इसके बाद आ जाती है हैदराबाद। करेक्ट, आई रिपीट, आई करेक्ट माई सेल्फ, फिर से बता रहा हूँ, न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा हमें क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट देखने को मिली 8.8% की। इसके बाद बैंगलोर में हमें देखने को मिली 8.3% की, और इसके बाद हमें देखने को मिली मुंबई में 5.2% की ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये पुणे और ये रहने देंगे, बैंगलोर और मुंबई याद रखेंगे। नेक्स्ट, इन दिसंबर IRDAI इनके द्वारा सेट किया गया, इनके द्वारा लॉन्च किया गया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो कवर करता है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को। पूछा जा रहा है उसका नाम क्या रहेगा?
तो जो वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है IRDAI के द्वारा लॉन्च किया गया, नाम है उसका बीमा विस्तार। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च किया गया था इन द फिस्कल ईयर ऑफ 25, ये लॉन्च किया जाएगा मतलब अभी, करेक्ट, बीमा विस्तार। नेक्स्ट, आरबीआई ने ग्रांट किया है 1 साल का एक्सटेंशन फॉर द को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पार्टनरशिप बिटवीन बजाज फाइनेंस लिमिटेड एंड डैश बैंक। एक्सपेक्टेड था कि 2 साल की ये एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन बजाज फाइनेंस लिमिटेड एंड आरबीएल बैंक का जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है उसको भी 1 साल का ही एक्सटेंशन मिला, राइट, 2 साल का नहीं मिला। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 18th एडिशन ऑफ नास्कॉम DSCI एनुअल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी समिट गुड़गांव हरियाणा में जो हुई। इससे रिलेटेड अगर देखें तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी गलत है। ए कह रहा है कि इंडिया साइबर थ्रेट रिपोर्ट ये लॉन्च किया गया जो प्रोवाइड करता है इंसाइट इनटू द साइबर थ्रेट्स इन इंडिया एंड एम्स टू प्रोवाइड बिजनेसेस विद एक्शनेबल रिकमेंडेशंस, तो बिल्कुल सही। दूसरा है, ड्यूरिंग दिस समिट 13th एडिशन ऑफ DSCI एक्सीलेंस अवार्ड्स ये हुए थे, इनको प्रेजेंट किया गया टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स फॉर देयर वर्क इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, बिल्कुल सही। तीसरा कह रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनको दिया गया प्रेस्टिजियस DSCI एक्सीलेंस अवार्ड इन द कैटेगरी बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन एनर्जी सेक्टर, तो नहीं। ये क्या रहेगी, कौन सी कंपनी को दिया गया है, गेल को, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को कन्फर किया गया DSCI एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से अंडर बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन एनर्जी सेक्टर। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी इज सेट टू एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट AI सिटी, कहां पर होगी, कौन सी स्टेट में, उत्तर प्रदेश में होगी। सिटी का नाम क्या रहेगा, लखनऊ, राइट, लखनऊ इंडिया की पहली AI सिटी बनने जा रही है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, कोका कोला, इन्होंने अपनी पार्टनरशिप को एक्सटेंड कर दिया है विद ICC, कब तक, 2031 तक यहां पे इनकी पार्टनरशिप को एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम को लाने का, बाय कब तक, तो मार्च 2024 तक प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड NHAI का कि ये GPS बेस्ड आपका टोल कलेक्शन सिस्टम रहेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा लाइन में। इससे जो ट्रैफिक की सिस्टम है, जो जाम लग जाते हैं टोल्स पर, वो रिड्यूस हो जाएंगे एंड आपका GPS बेस्ड ही आपके लोकेशन के बेस के हिसाब से ही आपका टैक्स कट जाएगा, टोल टैक्स कट जाएगा डायरेक्टली आपके अकाउंट से। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड देयर विड्रॉ फ्रॉम OPEC फ्रॉम जनवरी 2024, तो OPEC से अभी हमने देखा रिपब्लिक ऑफ अंगोला ने एग्जिट कर दिया। रीजन क्या था एग्जिट करने का, क्योंकि जो टारगेट सेट किए थे OPEC ने, उन कोटास को ये मैट नहीं कर पाए हैं, इसलिए इन्होंने डिसीजन लिया कि वी विल एग्जिट फ्रॉम OPEC। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड जो कि है द ई-सवर्णा कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क। तो ये जो ई-सवर्णा कार्ड है, राइट, ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, इंडसइंड बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, मार्क करके चलेंगे। एंड ये एक आपका कमर्शियल क्रेडिट कार्ड रहेगा। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड देयर न्यू सूट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू इंप्रूव देयर बैंकिंग सर्विसेज। अपने बैंक की जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, जो कस्टमर सर्विसेज दी जाती हैं, उनको इंप्रूव करने के लिए नई सर्विसेज लॉन्च की गई, किस बैंक के द्वारा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ये नई सर्विसेज, डिजिटल सर्विस लॉन्च की गई। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया $165 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट विद वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स इन रेजिडेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल एरिया। तो सबसे पहले याद रखेंगे ये SBI रहेगा। पहला तो SBI ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक LOC साइन किया लाइन ऑफ क्रेडिट, कितना रहेगा, $165 मिलियन का। दूसरा याद रखेंगे, इन्होंने एक लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ, और ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट रहेगा आपका, ये है 200 मिलियन यूरो का, ठीक है। और ये जो था, ये आपका बेसिकली क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए था, क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो दो यहाँ पे आपको लाइन ऑफ क्रेडिट याद रखने हैं, एक वर्ल्ड बैंक के साथ, एक यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ SBI के। नेक्स्ट, नेम द स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसको रिसेंटली कमीशन किया गया बाय इंडियन नेवी इन मुंबई महाराष्ट्र। क्या नाम रहेगा उसका, INS इम्फाल। इसको ही हम बोलते हैं यार्ड 12706। इसको डेवलप किसके या फिर बोले बिल्ट बाय मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, राइट। एंड इसको कमीशन कहाँ किया गया, एट नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। एंड राजनाथ सिंह जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, उनकी प्रेजेंस में इनको यहाँ पे कमीशन किया गया। देन ये थर्ड ऑफ द फोर्थ प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर हैं, जो कि वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा डिजाइन किए गए हैं एंड बिल्ड किए गए हैं मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट,
किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया खेलो इंडिया पैरा गेम्स के साथ एंड दिव्यांगन काला मेला के साथ, ताकि जो भी आपके डिफरेंटली एबल्ड प्लेयर्स हैं अक्रॉस इंडिया उनको हेल्प की जा सके, उनको अकोमोडेशन दी जा सके, उनको हेल्प किया जा सके टू बी अ बेटर प्लेयर एंड ग्रो इन लाइफ, राइट। तो डिसेबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन की हेल्प कर रही है कौन सी कंपनी? ओयो। इन्होंने काफ़ी सारी एनजीओ के साथ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी टाई अप किया है ताकि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, डिसेबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन है, हम उनकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया है इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, आर टेक्स्ट बुक फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स? तो ये बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है अभी रिसेंटली? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट, वीर बाल दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड एडिशन रहेगा वीर बाल दिवस का, जो हम 2023 में ऑब्जर्व कर रहे हैं। यह ऑब्जर्व किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ थर्ड एंड फोर्थ इन द ड्यूरिंग टू और या फिर टू रिमेंबर और टू, ये वीर बाल दिवस ऑब्जर्व किया जाता है ताकि ऑनर करने के लिए जो थर्ड एंड फोर्थ सन थे ऑफ आर 10th एंड लास्ट सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह, उनके थर्ड एंड फोर्थ बच्चे की सेक्रीफाइस को ऑनर किया जाता है यहाँ पे। थर्ड सन कौन था? वो थे साहिबजादा जोरावर सिंह एंड फोर्थ कौन थे? साहिबजादा फतेह सिंह, करेक्ट। इनके ऑनर को, इनके ट्रिब्यूट को, इनका जो सेक्रीफाइस था उनको ऑनर करने के लिए हम ये वीर बाल दिवस ऑब्जर्व करते हैं। पहली बार 2022 में ऑब्जर्व किया गया था और दूसरा एडिशन इसका 2023 में ऑब्जर्व किया गया है, 26 दिसंबर को। नेक्स्ट, LIC is the anchor investor for Dash Infrastructure Bond Sale by NABARD on 20th of December 2023। तो LIC एक एंकर इन्वेस्टर रहेगा फॉर 5,000 करोड़ रुपीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड सेल बाय नाबार्ड। जो नाबार्ड के ये बॉन्ड्स होते हैं ये AAA रेटेड हैं, याद रखेंगे, ICRA के द्वारा। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद गवर्नमेंट ऑफ गुजरात टू एक्सप्लोर सबमरीन टूरिज्म इन बेट द्वारका एरिया? बेत द्वारका एरिया में सबमरीन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने अभी किसके साथ टाई अप किया? मडगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के साथ, राइट। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और वो भी सबमरीन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इवन अगर आप देख रहे हैं तो लक्षद्वीप में भी अभी ऐसा ही हो रहा है। मालदीव को काफ़ी ज़्यादा बायकॉट करके लक्षद्वीप के टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की जा रही है। इवन हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी मालदीव के खिलाफ जब इन्होंने डेरोगेटरी कमेंट्स दिए इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो काफ़ी ज़्यादा बैकलैश देखने को मिला और 3 मिनिस्टर्स को भी मालदीव से यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कॉर्पोरेशन अमित शाह, इनके द्वारा एक पोस्टल स्टैंप रिलीज किया गया टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ पंडित जसराज मोतीराम म्यूजिक फेस्टिवल। 50th एनिवर्सरी इस म्यूजिक फेस्टिवल का, जिसका नाम रहेगा पंडित मनीराम संगीत समारोह। ये न्यू दिल्ली में हुआ था। पंडित याद रखेंगे, पंडित जसराज, राइट, ये काफ़ी फेमस एक म्यूजिशियन है, करेक्ट। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को ये काफ़ी ज़्यादा दिग्गज रहेंगे, राइट। इनको फिर पद्मा श्री से सम्मानित किया गया था 1975 में, पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था 1990 में, पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था सन 2000 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप्स मेड बाय RBI इन दिसंबर 2023? तो याद रखेंगे तीनों ऑप्शन यहां पर आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, अभी सेबी ने एक्सटेंड की डेडलाइन टू ऐड नॉमिनीज फॉर डीमैट अकाउंट्स एंड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज टू डैश। पहले ये डेडलाइन 31 दिसंबर थी, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2024 तक, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेप्स टेकन बाय ONDC इन दिसंबर? तो ONDC के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए अभी? अगर ABC देखें तो तीनों ऑप्शन ठीक रहेंगे। ONDC एंड गूगल ने पार्टनर किया ताकि जो आपकी मेट्रो की टिकट्स हैं उनको गूगल मैप के थ्रू आप बुक कर सकते हैं। इनकी द पार्टनरशिप विल फोकस ऑन लेवरेजिंग गूगल मैप टू एनहेंस ONDC एनेबल्ड ऑटो हेलिंग सर्विस नमा यात्री एंड विद द फोकस ऑफ ब्रिंगिंग मेट्रो शेड्यूल्स एंड बुकिंग टू यूजर्स। ये भी बिल्कुल सही। ONDC एंड मेटा इन्होंने पार्टनर किया जो MSMEs हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको हेल्प करने के लिए ताकि वो ग्रो कर सके थ्रू देयर व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, which bank has recently reappointed Atanu Chakrabarti as the part-time non-executive chairman and independent director for a second term of 3 years? तो किस बैंक ने? HDFC बैंक ने अभी रिसेंटली रीअपॉइंट किया है अतानु चक्रवर्ती को 3 साल के लिए। इनका ये सेकंड टेन्योर रहेगा एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एज द चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक।
नेक्स्ट है किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी लॉन्च किया ओसाइरिस एपेक्स, जो कि है ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी अपोफिस एक्सप्लोरर। ये मिशन लॉन्च किया नासा के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि एक एस्ट्रॉयड फ्लाई बाय करेगा 2029 में बाय अर्थ, उसको स्टडी करने के लिए। और उस एस्ट्रॉयड का नाम क्या रहेगा? अपोफिस। अपोफिस उस एस्ट्रॉयड का नाम रखा गया। तो नासा के द्वारा ये मिशन प्लान किया गया है, राइट। और 2029 में फ्लाई बाय होगा इस एस्ट्रॉयड का अपोफिस, इसको स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट, फ्रेंच पॉलिटिशियन डैश हु सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, इनका भी निधन हो गया। 1985 से 1995 तक यहाँ पे यूरोपियन कमीशन के ये प्रेसिडेंट थे। क्या नाम रहेगा? जैक्स डिलॉर्स, राइट। मार्क करके चलेंगे। 98 की एज में इनका निधन हो गया। ये पेरिस, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन एम्स टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस टू ऑल हाउस होल्ड रूरल इंडिया बाय कब तक? तो जल जीवन मिशन के अंडर इनका एम है कि 2024 तक हम हर घर में, हर हाउस होल्ड में टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करा सकें। और अभी तक 70% से, या फिर हम बोले एग्जैक्ट टू बी 72% रूरल हाउस होल्ड्स में टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराया जा चुका है। नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट विल गेट इंडियाज फर्स्ट इंटर स्टेट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब? तो किस एयरपोर्ट को मिलेगा इंडिया का पहला इंटर स्टेट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब? वो है IGAI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली में। यहाँ पर आप देखेंगे मेट्रो से कनेक्टिविटी होगी, RRTS से कनेक्टिविटी होगी, राइट। बस टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्टिविटी रहेगी। तो बहुत अच्छी यहाँ पे कनेक्टिविटी डेवलप होने वाली है। नेक्स्ट, किस IIT ने अभी रिलायंस जियो के साथ टाइप किया ताकि भारत GPT, जो कि एक जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है, एक AI प्रोग्राम है, इसको यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई IIT बॉम्बे के साथ, राइट। तो जियो ने टाइप किया IIT बॉम्बे के साथ। फिर यहीं पे एक चीज़ और याद रखेंगे, IIT गुवाहाटी, इन्होंने भी टाइप किया है असम गवर्नमेंट के साथ, ताकि असम गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है उस पर वर्क कर सके, ताकि स्टेम सब्जेक्ट्स को प्रमोट किया जा सके अमंग द यूथ ऑफ असम। जो असम का यूथ है उनको यहाँ पे स्टेम प्रोजेक्ट्स में लाने के लिए, स्टेम सब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया। और ये जो टाइप है ये एक स्कीम के अंडर हुआ है जिसका नाम रहेगा आरोहन स्कीम। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने इंट्रोड्यूस किया न्यू डिजाइन फॉर एडमिरल्स एपुलेट्स ड्रॉन फ्रॉम द नेवल एलिमेंट्स इंस्पायर्ड बाय द राजमुद्रा ऑफ डैश। तो ये जो नए एपुलेट्स लॉन्च किए गए हैं इंडियन नेवी के द्वारा, छत्रपति शिवाजी महाराज के राजमुद्रा इससे इंस्पायर्ड रहेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI's लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, इनके द्वारा रिलीज की गई एक लिस्ट, इसमें से बताया गया इनमें से कौन से बैंक रहेंगे। दे नीड टू मेंटेन हायर कैपिटल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड HDFC बैंक, इन दोनों को हायर कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2025 से। नेक्स्ट, डैश वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द CISF। तो CISF की पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट की गई हैं? वो रहेंगी नीना सिंह, राइट। मार्क करके चलेंगे, नीना सिंह वो पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल बन गई हैं CISF की। फिर याद रखेंगे CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? CRPF के वो हैं अनीश दयाल सिंह। और फिर यहीं पे याद रखेंगे राहुल रसगोत्रा, ये डायरेक्टर जनरल बन गए हैं ITBP के। Next, which of the following subsidiaries of ICICI Bank received RBI's approval to acquire aggregate holding of up to 9.95% stake in RBL Bank, IDFC First Bank, Equitas Small Finance Bank, Federal Bank and IndusInd Bank? तो कौन सी रहेंगी? ICICI Prudential Life Insurance and ICICI Prudential Asset Management Company। इन दोनों को यहाँ पर रिसेंटली याद रखेंगे 9.995% स्टेक एक्वायर करने की बात की गई। नेक्स्ट, रशिया की रॉसकॉस्मोस एंड USA का नासा, ये दोनों इनकी स्पेस एजेंसी है, राइट। अगर आपको याद हो, रशिया ने बोला था कि हम 2024 तक, जब इन्होंने यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी, 2024 तक हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एग्जिट कर देंगे, राइट। लेकिन अभी एक न्यूज़ आ रही है, नासा और इनके बीच में फिर से टाइप हुआ और ये 2025 तक इन्होंने अपना मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक्सटेंड कर दिया है, राइट। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो 1998 में इसको लॉन्च किया गया था, जब रशिया और US के बीच में कॉपरेशन अच्छा था। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर इन इंडिया एज ऑन December 31, 2023? तो 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं इंडिया में भी, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल, इन्होंने अनाउंस किया that the government has extended the benefits of this road tap scheme to export to e-commerce exports through various courier and postal service। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली रोड टैप स्कीम की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, क्या रहेगी? तो रोड टैप क्या है आपका? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड
प्रोडक्ट्स। तो आर क्या है, रेमिशन ऑन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, राइट। एंड पीयूष गोयल के द्वारा यहाँ पे ये अनाउंसमेंट की गई फॉर रिफंड ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज जो कि आपके मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा लगाई जाती है, यानी रिमर्स नहीं की जाती है इधर बाय सेंटर स्टेट और लोकल स्टेट एट लोकल लेवल, ठीक है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा रिलीज बाय एनएसई, किस स्टेट ने टॉप किया विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स। तो महाराष्ट्र यहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉप पे रही, या फिर वो स्टेट जो है जो टॉप पे रही वो है महाराष्ट्र विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स एज पर एनएसई। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 1.48 करोड़ इन्वेस्टर्स रहेंगे यहाँ पर। फिर आ जाता है यूपी सेकेंड पोजिशन पे विद 89.47 लाख इन्वेस्टर्स। फिर इसके बाद आ जाता है थर्ड पोजिशन पे आपका, थर्ड पोजीशन पे कौन रहेगा, चलो ये कमेंट करके बताओ, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में आपको कंफर्म करता हूँ, राइट। टॉप पर है महाराष्ट्र क्योंकि टॉप इंपॉर्टेंट रहता है, ये तो जस्ट अभी बात से बात निकलाई। थर्ड कौन सा रहेगा, सेकंड यूपी है, थर्ड नंबर पे टॉप कौन सा रहेगा। अगर हम क्रिप्टो की बात करने, अभी हमने देखा था कि दिल्ली स्टेट टॉप पर रही थी, ठीक, क्रिप्टो में। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एनटीपीएस एज वन नेशन वन पास सिस्टम। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ताकि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, जो हमारे वुड से रिलेटेड इंडस्ट्री है, उससे जो एक्सपोर्ट्स हो सके, उससे जो ट्रांसपोर्टेशन हो सके, जो हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर है, उसको इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर ये वन नेशन वन नेशनल वन पास सिस्टम को लॉन्च किया गया। जैसे आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टिम्बर, बैम्बू एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अक्रॉस इंडिया ईजी हो सके, इसीलिए ये वन नेशनल वन पास सिस्टम को लॉन्च किया गया, जो है एनटीपीएस, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। नेक्स्ट, डीईए जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, इन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम का टू डैश फ्रॉम 8%, राइट। 8% था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 8.2% फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24, राइट। तो कितना हो गया है, 8.2% हो गया, पहले 8% था। किसके लिए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के लिए। नेक्स्ट, आरबीआई ने रिवाइज किया पीआईडीएफ स्कीम को, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को, एंड एक्सटेंडेड द गाइडलाइन अंटिल डैश। तो इसकी गाइडलाइन कब से कब तक बढ़ा दी गई है, तो इसकी गाइडलाइन जो बढ़ा दी गई है अब टू डैश, कब तक बढ़ा दी गई है बताइए ज़रा, एक्सटेंड कर दी गई है 31 दिसंबर 2024 तक, 2025 तक, लेट मी करेक्ट यार, 31 दिसंबर 2025 तक इसकी एक्सटेंड कर दी गई है, करेक्ट। इसके अंदर जो भी आपके ये डिवाइसेस होते हैं, आप कहीं दुकान पे जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे पेमेंट्स तक डिवाइसेस होते हैं, साउंड बॉक्स डिवाइसेस होते हैं, राइट। आप उसके अंदर आप सब्सिडी ले सकते हैं, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। आप यहाँ पे पेमेंट करते हैं तो ये किस काम आते हैं कि आपकी पेमेंट की जो कंफर्मेशन है ना, वो बोल के आप अपने सेलर को, जो दुकानदार है, उनको बता सके, क्योंकि बार बार उन्हें चेक नहीं करना पड़ेगा, राइट। ये ईजी हो जाता है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे सब्सिडीज क्लेम कर सकते हैं फॉर दीज डिवाइसेस। नेक्स्ट, इन दिसंबर डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू केमिकली रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो समझोगे कि अभी प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए केमिकल का यूज करने वाली वो पहली कंपनी कौन सी बन गई इंडिया में, जो कि उसको कन्वर्ट कर देगी ISCC सर्टिफाइड पॉलीमर्स में, राइट। ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड पॉलीमर्स में कन्वर्ट कर देगी यूजिंग केमिकल प्रोसेस प्लास्टिक वेस्ट को। वो कौन सी पहली कंपनी बनी जो ये काम करेगी, तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनकी ये कंपनी कहाँ सेटअप किया जाएगा, ये प्लांट कहाँ सेटअप होगा, जामनगर गुजरात में ये सेटअप होगा। नेक्स्ट, नेम द 7th 250 मैन फेरी क्राफ्ट जो भी डिलीवर की गई बाय द शालीमार वर्क्स 1980 लिमिटेड टू द इंडियन नेवी। तो क्या नाम रहेगा उसका, मंजूला यार्ड 786, ये डिलीवर किया गया अभी टू इंडियन नेवी। ये 250 मैन फेरी क्राफ्ट रहेगी, शालीमार वर्क्स 1980 के द्वारा इसको डिलीवर किया गया। मार्क करके चलेंगे इसको, ठीक है। 25 साल की इसकी लाइफ रहेगी। एक और यहां पे एंड में याद रखेंगे, ISAE फेलोशिप 2023 से किनको सम्मानित किया गया, वो है P इंदिरा देवी, राइट। ये पहली व्यक्ति बनी केरला से, पहली वीमेन भी कह सकते हैं, पहला पर्सन भी कह सकते हैं फ्रॉम केरला जो बनी, जिनको इस ISAE फेलोशिप 2023 से सम्मानित किया गया। रीजन बीइंग कि इन्होंने जो एग्रीकल्चर इकोनॉमीज एंड रूरल डेवलपमेंट में जो अपना सहयोग दिया, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उसको सम्मानित करने के लिए यहाँ पे ISAE फेलोशिप से इनको सम्मानित किया गया, P इंदिरा देवी को। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द 4th वीक ऑफ दिसंबर। अब अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके क्या व्यूज रहेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं जो कि है हमारा रिवीजन। पुराने कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं जो कि आपकी लर्निंग में काफी हेल्प करेंगे।
चाइना एंड डैश कंट्री इन्होंने मिलकर अभी 2 कॉपरेशन डॉक्यूमेंट साइन किए ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड टू बूस्ट दी स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली मोटा देखा जाए तो चाइना एंड इजिप्ट के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ ताकि स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड हम काम करें, चाहे उससे रिलेटेड स्पेसक्राफ्ट बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो या कुछ भी। तो इजिप्ट एंड चाइना के बीच में, चाइना की होती है CNSA एंड इजिप्ट की होती है EGSA, इनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। Next, which of the following abrogated article of the Indian Constitution has given special status to the state of Jammu and Kashmir? तो वो है आर्टिकल 370, राइट, मार्क करके चलेंगे इसको। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी राइट दे दिया टू एलिमिनेट दिस आर्टिकल 370, करेक्ट। इसको 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपहेल्ड किया था द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन 5 अगस्त 2019। एंड ये जो आर्टिकल 370 है ये ग्रांट करता है जम्मू एंड कश्मीर को टू मेक देयर ओन लॉज इन द मैटर एक्सेप्ट फाइनेंस, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड जो वो मैटर है वो उनमें डील कर सकते हैं, अपने लॉज बना सकते हैं एक्सेप्ट इन दीज कैटेगरीज। ठीक, नेक्स्ट, which country has recently unveiled advanced क्रार कॉम्बैक्ट ड्रोन्स आर्म्ड विद एयर टू एयर मिसाइल? तो ये क्रार कॉम्बैक्ट ड्रोन्स किसके हैं? ईरान के रहेंगे, राइट। इनकी रेंज रहेगी 1000 किलोमीटर तक की। इसी के साथ साथ एक थर्मल मिसाइल का भी नाम याद रखेंगे, थर्मल मिसाइल, क्या नाम रहेगा इसका? माजिद, राइट। माजिद नाम की ये थर्मल मिसाइल रहेगी, 8 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। इसको भी ईरान के द्वारा ही डेवलप किया गया है, राइट। एंड करार कॉम्बैक्ट ड्रोन्स ये भी ईरान के द्वारा। नेक्स्ट, which company has recently signed 588.68 crore rupees contract with Ministry of Defence to acquire Digital Coast Guard project under Buy Indian category? I repeat, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया 588.68 करोड़ रुपीस कॉन्ट्रैक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू एक्वायर द डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट अंडर बाय इंडियन कैटेगरी? वो है टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, राइट। इन्होंने अभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट के लिए अंडर द बाय इंडियन कैटेगरी। एंड ये जो डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट है ये एक इनिशिएटिव रहेगा किस ऑर्गेनाइजेशन का? इंडियन कोस्ट गार्ड का। नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड एंड मास्टर कार्ड टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है IDFC फर्स्ट बैंक, राइट। इन्होंने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड के साथ एंड मास्टर कार्ड के साथ ताकि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। ये जो क्रेडिट कार्ड है इसमें कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं होगी, कोई भी एनुअल फीस नहीं होगी एंड टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज को यहाँ कैटर के कस्टमर्स को कैटर करने के लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज हैव रिसेंटली ऑनर्ड विद द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2023? तो 2 लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है इस इंदिरा गांधी पीस प्राइज से, वो है अली अबू अवाद एंड डैनियल बेरेनबोइम, राइट। इन दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया अभी रिसेंटली विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज से, करेक्ट। फिर मार्क करके चलेंगे इसको, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? तो वो कौन है? वो है लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज। ये दोनों वो इंडिविजुअल्स हैं, ये दोनों वो टेनिस प्लेयर हैं जिनको, और ये वो पहले इंडियंस बने जिनको इंडक्ट किया गया टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। एंड ये वो पहले एशियंस भी बने जिनको अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में ऐड किया गया टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। एंड ये वो इंडिया 28th नेशन बन गया है जिसको रिप्रेजेंटेशन मिली इन द हॉल ऑफ फेम। नेक्स्ट, BCCI इन्होंने अनाउंस किया रिटायरमेंट ऑफ द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर MS धोनीज आइकॉनिक जर्सी नंबर डैश। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे इससे पहले सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 को भी रिटायर किया गया था एंड अब MS धोनी की जर्सी नंबर 7 को भी यहाँ रिटायर कर दिया गया है। ये रिटायर करने का मतलब है कि अब कोई भी आगे फर्दर इंडिविजुअल इन जर्सी नंबर्स को यूज नहीं कर पाएगा, ये इन लोगों के लिए यहाँ पे रिजर्व हो गई, इनको ऑनर करने के लिए। MS धोनी की बात करें तो पद्मश्री से इनको 2009 में सम्मानित किया गया था, पद्मा भूषण से इनको 2018 में सम्मानित किया गया था, और ये सेकंड क्रिकेटर बने जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया इन 2007 एंड सचिन तेंदुलकर को 1997 में करा गया था। नेक्स्ट, नोवैक जोकोविच फ्रॉम सर्बिया, ये वो मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के वर्ल्ड चैंपियन बने फॉर 2023 फॉर द डैश टाइम फॉर 8th टाइम। एंड वहीं पे अगर वीमेन की बात करूं तो बेलारूशियन टेनिस प्लेयर एरियाना सेबलंका फर्स्ट टाइम यहाँ पे
पहली बार वीमेंस आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन बनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वीमेंस आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन कौन बनी? एरिना सेबलेंका फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड मेंस आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन कौन बने? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं, फॉर द 8th टाइम। नेक्स्ट, आरबीआई ने अप्रूव किया ऑफलाइन रिटेल पेमेंट प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय डैश बैंक इन पार्टनरशिप विद क्रंचफिश एबी फॉर अडॉप्शन बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो याद रखेंगे, अभी रिसेंटली आरबीआई ने अप्रूव किया ऑफलाइन रिटेल पेमेंट प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय एचडीएफसी बैंक इन पार्टनरशिप विद क्रंचफिश एबी फॉर अडॉप्शन बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। राइट, ये जो ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स हैं, राइट, ये प्रोडक्ट ये प्रोवाइड करेगा कस्टमर्स को एंड मर्चेंट्स को, ताकि वो ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकें ऑनलाइन मोड में। करेक्ट। फिर यहीं पे दिस सॉल्यूशन आप देखेंगे, पीकेआई एक टर्म होगा, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली याद रखेंगे, ये क्या होगा कि जो पेमेंट्स आएंगे ना, उनको सिक्योर करने के लिए ये एक टर्म यूज़ किया गया। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफलाइन रिटेल पेमेंट प्रोडक्ट ये किस बैंक के द्वारा डेवलप किया गया है? एचडीएफसी बैंक के द्वारा डेवलप किया गया इन पार्टनरशिप विद क्रंचफिश एबी। राइट, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, हु इज सेट टू रिसीव पद्मापनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल इन जनवरी 2024। तो वो है जावेद अख्तर। राइट, जावेद अख्तर यहाँ पे रिसीव करेंगे पद्मापनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल जनवरी 2023 में। एंड ये 9th एडिशन रहेगा ऑफ दिस फेस्टिवल। कौन सा एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स हुआ अभी बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम, बिटवीन दैट कहाँ पर हुआ? हनोई एंड वियतनाम में इन दिसंबर। तो याद रखेंगे, ये आपका कौन सा एडिशन है? ये आपका 4था एडिशन रहेगा ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स, जो कहाँ पे? इंडिया एंड वियतनाम में हुआ, के बीच में हुआ। लोकेशन क्या रहेगी, कहाँ पर हुआ था? हनोई में हुआ था, हनोई वियतनाम में। राइट, 11 से 21 दिसंबर के बीच में ये इवेंट वहाँ पर हुआ। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली लॉन्च किया एक्सक्लूसिव सेविंग बैंक अकाउंट नेम्ड नारी शक्ति सेविंग अकाउंट? ये वीमेंस के लिए लॉन्च किया गया है। 18+ वीमेन होनी चाहिए, जो सेल्फ अर्निंग वीमेंस होती हैं, उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। करेक्ट, किस बैंक के द्वारा? नाम रहेगा बैंक ऑफ इंडिया। नारी शक्ति सेविंग अकाउंट्स वीमेंस के लिए बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस एरोस्पेस कंपनी ने या स्पेस कंपनी ने भी रिसेंटली लॉन्च किया जूक 2 याओ 3, जो कि वर्ल्ड का पहला लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल रहेगा, जिसने 3 सैटेलाइट स्पेस में ले जाई गई। तो वो कौन सी कंपनी है? वो है लैंडस्केप चाइना। राइट, इनके द्वारा ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया जूक 2 याओ 3, जो कि वर्ल्ड की पहली लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल रहेगा। इसी के साथ साथ एक और कंपनी का नाम याद रखेंगे, वो है आई स्पेस। आई स्पेस वो कंपनी है जिन्होंने चाइना का पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्ट किया। चाइना's first reusable launch vehicle test करा। Name the Indian naval ship that has recently commissioned by the Indian Navy at the naval dockyard in विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में वो कौन सा इंडियन नेवल शिप है जिसको अभी कमीशन किया गया बाय इंडियन नेवी? तो वो INS तरमुगली है। राइट, ये वो इंडियन नेवल शिप है जिसको अभी कमीशन किया गया एट द नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, बनाया किसके द्वारा गया है इसको? GRSE के द्वारा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। मूविंग ऑन, व्हेन वाज योर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो 14 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 338.24 करोड़ रुपीस टू डैश स्टेट विच वॉज सिवियरली अफेक्टेड बाय साइक्लोन बिपरजॉय। तो अभी याद रखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गुजरात स्टेट के लिए 338.24 करोड़ रुपीस यहाँ पे अलोकेट किए, विच सिवियरली अफेक्टेड बाय द साइक्लोन बिपरजॉय। मूविंग ऑन, वीमेन एम्पावरमेंट एंड लाडली बहना दिसंबर 2023, ये एक रिपोर्ट थी जो रिलीज की गई बाय SBI इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा इन दिसंबर। एंड यहाँ पे इसमें बताया गया कि जो वीमेन वोटर्स का काउंट है ना, वो बढ़ जाएगा कंपेयर टू दैट ऑफ मेन वोटर्स काउंट बाय 2029 जनरल इलेक्शंस। राइट, इन्होंने बोला अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रोजेक्शन है कि 73 करोड़ अगर वोटर्स टर्न आउट होते हैं 2029 में, तो उसमें से 37 करोड़ तो आपकी वीमेन होंगी और 36 करोड़ आपके मेन होंगे। When was the UN International Mountains Day observed across the globe with the theme Restoring Mountain Ecosystem? तो किस या फिर पूछा जाए कब ऑब्जर्व किया जाता है UN इंटरनेशनल माउंटेन्स डे, जिसकी थीम रहेगी रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम? तो हम याद रखेंगे 11 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं UN इंटरनेशनल माउंटेन्स डे, और पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था 2003 में।
Next, in November, Dash became the first woman to assume the role of commanding officer at the Armed Force Transfusion Center at Delhi Cant. तो वो है कर्नल सुनीता BS, राइट. ये वो पहली वीमेन बनी टू अज्यूम द रोल ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एट द आर्म्ड फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर इन दिल्ली कैंट. नेक्स्ट, SBI ने रिपोर्टेड अन -% ईयर-on-ईयर ग्रोथ इन देयर सेकेंड क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट एट 14,330 करोड़ रुपीज. तो SBI ने कितना रिपोर्ट किया ईयर-on-ईयर ग्रोथ इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 24? तो 8% का यहाँ पे ग्रोथ रजिस्टर किया विद अ प्रॉफिट ऑफ 14,330 करोड़ रुपीज. नेम द एक्टर जिन्होंने अभी रिसेंटली ऑनर किया गया, जिनको ऑफिस ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक इस ऑनर से. तो कौन है वो एक्टर? वो है कबीर बेदी. वो एक्टर हैं जिनको ऑनर किया गया है ऑफिसर ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से. मार्क करके चलेंगे. एंड इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया ताकि इन्होंने इंडिया और इटली के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको जो बढ़ावा दिया है, राइट, उसके लिए इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए इनको यहाँ पे ऑफिसर ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया. नेक्स्ट, तिरिया. अभी हम बात कर रहे हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की, राइट. नीति आयोग का ये प्रोग्राम है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम. ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम याद रखेंगे जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था. एंड इसका एम क्या है कि जो अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं इंडिया में उनको डेवलप करना एंड वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको बेटर सर्विस, उनको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कराने के लिए. तो यहाँ पे वो कौन सा ब्लॉक है जिन्होंने टॉप किया है? तो वो है तिरियानी ब्लॉक ऑफ तेलंगाना स्टेट, जिन्होंने यहाँ पे टॉप किया, राइट. एंड सेकेंड पोजिशन पे यहाँ पे भी याद रखेंगे कौशंबी ब्लॉक. कौशंबी ब्लॉक, ये कौशंबी ब्लॉक कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में रहेगा, सॉरी उत्तर प्रदेश में रहेगा. एंड ये सेकंड पोजीशन पे आता है. टॉप पे रहेगा तिरियानी ब्लॉक ऑफ तेलंगाना. नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली स्वॉर्न इन एज द 4th चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? तो वो है विष्णु दियो साय. इनको अभी रिसेंटली स्वॉर्न इन किया गया एज द 4th चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़. ये किनको रिप्लेस करेंगे? इन्होंने रिप्लेस किया है किनको? भूपेश बाघेल को, जो कि 2018 से 2023 तक इस पोजीशन में थे. ठीक है. एंड ये पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बने हैं छत्तीसगढ़ के, विष्णु दियो साय. नेक्स्ट, बेन कैपिटल. इन्होंने अपना 1.08% स्टेक अभी सेल कर दिया इन डैश बैंक फॉर 3,737 करोड़ रुपीज इन अ ब्लॉक ट्रेड. तो याद रखेंगे बेन कैपिटल ने 1.08% स्टेक अभी सेल कर दिया इन एक्सिस बैंक फॉर 3,737 करोड़ रुपीज इन अ ब्लॉक ट्रेड. इससे पहले इन्होंने एक और सेल डाउन किया था, करेक्ट, 2023 में जून में फॉर 0.73% के लिए, जो था 2178 करोड़ रुपीज के. नेक्स्ट आ जाता है किस कंपनी ने अभी इंडिया की पहली सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया. देखो हम जानते हैं लिथियम आयन टेक्नोलॉजी अभी प्रिवेल कर रही है, राइट. ये बैटरीज बनती हैं इससे. लिथियम इंडिया में भी जम्मू एंड कश्मीर में मिला था, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा रॉ लिथियम को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसको पहले प्रोसेस किया जाता है. और जो प्रोसेस करने की जो मोनोपोली है ना वो है चाइना के पास. तो इससे जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कॉस्ट होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. वहीं पे इंडिया ने इसको एक ही तीर से दो शिकार कह लो कि एक तो ईवी की बैटरी की कॉस्ट कम हो जाएगी, इससे 20 से 30% रिडक्शन देखने को मिलेगा विद सोडियम आयन बैटरी. एंड जो चाइना की डोमिनेंस है उसको भी यहाँ पे खत्म कर दिया इन दिस सेक्टर, राइट. तो कौन सी टेक्नोलॉजी है वो है KPIT टेक्नोलॉजीज. इन्होंने इंडिया का पहला सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी को डेवलप करा. KPIT अलॉन्ग विद IISER ऑफ पुणे महाराष्ट्र, जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे महाराष्ट्र के द्वारा मिलकर इसको डेवलप किया गया. एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होगी, राइट. 20 से 25% की यहाँ पे लेस प्राइस होगा ऑफ इलेक्ट्रिक बैटरी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, राइट. एंड यहाँ पे जो चार्ज पर साइकिल्स होते हैं ना वो भी ज़्यादा होंगे. नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. इन्होंने अप्रूव किया ₹1 का प्रपोजल टू परचेज अबाउट 6,400 रॉकेट्स फॉर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम. तो ये जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है ना, इसको लॉन्च किए इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए लाया गया है. और इसके लिए 6400 रॉकेट लॉन्चर्स रॉकेट्स को, क्योंकि ये रॉकेट लॉन्चर है ना, तो इसमें 6400 रॉकेट्स को प्रोक्योर करने की बात की गई फॉर दिस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर. 2800 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर इसको प्रोक्योर किया जाएगा. ठीक है. और ये जो आपका रॉकेट लॉन्चर है ना, इसका नेम दिया गया है पिनाका आफ्टर द बो ऑफ हिंदू डाइटी शिवा. शिवाजी का जो बो था उसको पिनाका बोलते थे, राइट. और ये जो पिनाका वेपन सिस्टम है किसके द्वारा डेवलप किया गया है? DRDO के द्वारा इसको डेवलप करा गया है. हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ENY. तो ENY के जो नई चीफ एग्जीक्यूटिव CEO बनी है वो पहली वीमेन है जो कि इस पोजीशन को संभालेंगी यहाँ पे, जेनेट ट्रंकेल, राइट. ये वो पहली वीमेन बनी जो लीड करेंगी बिग 4 ऑडिट फर्म्स को. ये सक्सीड किनको करेंगी?
कारमाइन डी सीबीओ को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू सीईओ ऑफ ENY। नेक्स्ट, क्रिकेटर असद शाफिक, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया, डायरेक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग की। ये मर्सर के द्वारा रैंकिंग रिलीज की गई और यहाँ पे बताया जाता है कि कौन सी सिटी बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो सबसे पहले टॉप का याद रखेंगे, वो है वियना, ऑस्ट्रिया की है ये सिटी, राइट। इन्होंने टॉप किया फॉर द 11th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, फर्स्ट पोजीशन पे आई। अगर मैं पूछूं वो इंडियन सिटी कौन सी है जिसने इंडिया में टॉप किया, वो है हैदराबाद, करेक्ट। छठी बार इन्होंने इंडिया में टॉप किया। हैदराबाद की ग्लोबली रैंकिंग क्या रहेगी, 153। मार्क करेंगे, हैदराबाद तेलंगाना इन्होंने टॉप किया इन इंडिया, करेक्ट, फॉर द 6th टाइम। ग्लोबली इनकी 153rd रैंकिंग रहेगी। एंड ग्लोबली किसने टॉप किया, वो है वियना, ऑस्ट्रिया में, एंड फॉर द 11th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 3। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया परचेज ऑफ 70,000 मोर सेमी एटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स फ्रॉम डैश कंट्री बेस्ड सिग सॉर इनकॉर्पोरेशन फॉर द इंडियन आर्मी एट अ कॉस्ट ऑफ 800 करोड़ रुपीज। तो याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया परचेज ऑफ 70,000 सेमी एटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स, जो कि यूएसए बेस्ड कंपनी सिग सॉर इनकॉर्पोरेशन के द्वारा था, राइट। ये यूएसए की कंपनी है, इंडियन आर्मी के लिए प्रोक्योर किया गया, 800 करोड़ की लागत से प्रोक्योर किया गया। तो राइट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन 5 यूएसए। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 5th एडिशन ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड। ये रिपोर्ट रिलीज की गई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन दिसंबर। एंड % ऑफ द इंडियंस वर अनेबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021। तो यूएन के द्वारा, यूएन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया कि इंडियंस, कितने % इंडियंस, 74.1% इंडियंस ऐसे हैं जो प्रॉपर हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इन 2021। मतलब जो फूड इनसिक्योरिटी है वो बढ़ती जा रही है, एंड जो प्रॉपर डाइट होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की डे टू डे बेसिस पे, वो और ज्यादा अनहेल्दी होती जा रही है, राइट। मतलब वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, अनहेल्दी तो दूर की बात, वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द अल्फा वेल्थ प्लान टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द पॉलिसी होल्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है जिन्होंने अल्फा वेल्थ प्लान अभी लॉन्च किया टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर पॉलिसी होल्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो क्या नाम रहेगा, वो है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफर करता है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, जो अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को टू मॉडिफाई प्रीमियम्स, प्रीमियम पेमेंट टर्म्स, पॉलिसी ड्यूरेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड। तो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट किए गए, वो है डोनाल्ड टस्क, राइट। ये अभी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, कहाँ के, पोलैंड के। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली रीअपॉइंटेड जेराल्डो मार्टिन्स एज द प्राइम मिनिस्टर। तो गिनिया बिसाऊ के अभी रिसेंटली रीअपॉइंट किए गए हैं जेराल्डो मार्टिन्स एज द प्राइम मिनिस्टर। SBI इन्होंने साइन किया कितने अमाउंट का, एक लाइन ऑफ क्रेडिट विद KfW डेवलपमेंट बैंक, जो कि जर्मनी का है, टू सपोर्ट द सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे साइन किया $70 मिलियन का एक लोन लाइन ऑफ क्रेडिट, 70 मिलियन यूरो का एक लाइन ऑफ क्रेडिट KfW डेवलपमेंट बैंक ऑफ जर्मनी के साथ, ठीक है, ताकि जो सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में उनको प्रमोट किया जा सके। एंड ये COP28 जो कि दुबई में हुई, वहां पर इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली रिसीव किया ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI टू डिस्ट्रीब्यूट पेंशंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेंशंस पेमेंट ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो वो रहेगा बंधन बैंक, राइट। बंधन बैंक ने रिसीव किया ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI टू डिस्ट्रीब्यूट पेंशंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेंशंस पेमेंट ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक। फिर यहीं पे याद रखेंगे, ये बैंक प्रोवाइड करेगा पेंशन सर्विसेज टू मोर देन 50,000 retirees each year across 7 zonal offices and 8 production units of the Indian Railways. अगला, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रेज किया इट्स इकोनॉमिक फॉरकास्ट ऑफ इंडिया टू -% फॉर फिस्कल 24। तो 6.7% से इंडिया ग्रो करेगा एज पर एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर इन्फ्लेशन की बात करूं फिस्कल ईयर 24 में कितनी रहेगी, 5.5% यहाँ पे इन्फ्लेशन रहेगी, राइट, मार्क करेंगे। अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करूँ फिस्कल ईयर 25 की, तो इंडिया ग्रो करेगा 6.7% से, यहीं पे सेकेंड क्वार्टर में 6.5% से, राइट। मोहन यादव ये चीफ मिनिस्टर बने हैं कौन सी स्टेट के, मध्य प्रदेश के। एंड ये कौन से चीफ मिनिस्टर बने हैं, 19वें चीफ मिनिस्टर बने हैं। ये किनको रिप्लेस करेंगे, इन्होंने रिप्लेस किया है शिवराज सिंह
चौहान को टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। शिवराज सिंह चौहान 4 टर्म्स तक यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे ऑफ मध्य प्रदेश। 16 साल 5 महीने इन्होंने ऑफिस में बिताया एज द चीफ मिनिस्टर। तो राइट ऑप्शन बनता है यहाँ पे 19th चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, name the mutual fund company that has recently acquired 1.5% of paid up equity share capital in Karur Vasai Bank Limited through open market transactions। तो उस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने एक्वायर किया 1.5% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इन करूर वसाई बैंक। वो रहेगा SBI म्यूचुअल फंड्स, राइट। एंड 194.4 करोड़ की लागत से इन्होंने बाय किया एट 162 रुपीज पर शेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स वर रिसेंटली अनवेल्ड बाय रशिया। तो दो नाम रखेंगे A, B एंड C, क्रास्नोयार्स्क एंड एम्परर अलेक्जेंडर III। ये दोनों वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है रशिया के द्वारा अनवेल की गई एंड ये आपकी दोनों सबमरीन पैसिफिक रीजन में छोड़ी जाएंगी ताकि वहां की सर्वेलेंस की जा सके। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.